Hi students, how are you? I hope you are well and your studies are running smoothly in this crucial period of lockdown. So I am here today with a new very interesting topic, and that is mechanical properties of fluids. So today we are going to start with this topic. Okay, and as you know that I always start a topic from scratch and we learn that topic up to advance. So I am going to start with very basics, and in today's lecture especially we are going to learn about very basic things about the fluids, and from next lecture onwards we will be moving to the mechanical properties of fluids. Okay, so come, today let us understand what fluids are exactly. As far as the definitions are concerned and the concepts related to fluids are concerned, fluids actually are defined as in some textbooks you will find that fluids are the substances that can flow. Very simple, the substances that can flow. This is the one definition. Another definition of fluids is written in the textbooks, that fluids are the substances that continuously deform under the action of an external force. अब आप बोलेंगे सर इतनी लंबी डेफिनेशन, नए नए टर्म्स. सी, the term deform, you have already studied this in 11th standard. Deformation means change in dimension, change in shape and size of the body is called as deformation. So people say that fluids are the substances that continuously deform when it is applied with an external force. यानी वो सब्सटेंस जिन्हें हम अगर फोर्स अप्लाई करें, सो इट कैन कंटिन्यूअसली कीप ऑन डिफॉर्मिंग, कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, एंड दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. अनदर डेफिनेशन, दैट फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस दैट cannot resist shear stress. अब ये क्या है? Fluids are the substances that cannot resist shear stress. Guys, about this shear stress and about this deformation I'll be talking little bit later in this today's video only. But for our understanding, for just starting, just to get momentum of this topic, we stick ourselves for the sake of now to this definition. Fluids are substances that can flow. It's very easy to understand that those substances which can flow are classified in fluids. So let us take some example to understand. Okay, so in example I can write air. See, air can flow or not? Obviously air flows, so air can be classified as a fluid. Okay, air हो गया. और what another examples are there? Water. Okay, water is also can be classified into as fluid. It can also flow. So any substances which can flow, we can classify that substance into fluid. Another example let me take, and that is your toothpaste. Another example, see, you all know about volcano. What happens? The lava burst out from the mountain.
So that molten lava is also an example of fluid. That molten lava, you can write molten lava is also an example of fluid. So these were the common examples. तो हम लोगों ने समझा कि fluids are the substances that can flow. What are the substances that come under this? Air, water, toothpaste, molten lava. These all are the examples of fluid that can flow. Correct? But guys, let us classify these all materials, these all things into basic classification. You all know that matters are classified as solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensates. Generally in lower standards you have learned solid, liquid and gas, but as you know that research are going on and we are currently having solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensates. So let us have a look on this. See, air को आप किस में क्लासिफाई करेंगे? Obviously you can say that sir, this air can be classified into gas. Correct? water को आप किस में क्लासिफाइड करोगे? This water can be classified into liquid, isn't it? Toothpaste को हम किस में क्लासिफाई करेंगे? See, this toothpaste is a topic of debate that does not completely come under solid and does not completely comes under liquid. It is in between solid and liquid. Correct now? But since toothpaste cannot resist shear stress. See, toothpaste cannot resist shear stress, and that is why we have taken this topic, we have taken this example under example of fluid. So it is not completely solid, not completely liquid, but we are taking. Why? Because it comes under this definition, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर के बाद बात करूंगा. Now you can come to the last, molten lava. This is also an example of fluid. Okay, so you can see that if I take the example, I can only find three things which comes under fluid, and that is your liquid and gases and also plasma. So if you talk in general, in case of state of matter, these three are the states of matter which come under fluids. तो fluids हम solid को नहीं कह सकते. Fluids आप किसे कहेंगे? Liquid and gases and plasma, these three things combinedly called as fluids. So I hope you have got a very basic idea clearly about what fluids are, and these definitions of fluid which I have written over here, very important. These definitions are given in your textbook also, you can copy from that, but you have to remember this definition, and also you have to understand conceptually that fluid exactly क्या होता है. Okay, so you have learned liquid, gases and plasma. अब क्वेश्चन ये है कि सर सॉलिड फ्लूइड के अंदर क्लासिफाई क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट. So let us distinguish between solid and fluids. Remember, I am using the word distinguish between solid and fluids. So by this distinguish, you can clearly understand that why solid cannot come under fluid. And in this particular thing, I will be also talking about this shear stress. So what you just, for the sake of now, you do is pause your screen and write whatever the things are there on the board. Okay, now let us understand the distinguish between solids and fluids. Okay guys, if you have remember, in last
in 11th standard, in last standard, we have already learned about mechanical properties of solids. In that particular topic, in that particular chapter, we have completely dealt about the solids only. We deal with different kind of forces, with different kinds of properties like elasticity, plasticity, ductility, etc. So just revise that and you will get the idea. See, here I am having a solid block, correct? And now I am applying the force like this, like this, like this, and like this. These all forces are equal in magnitude. Now you can easily identify which type of load is this. This load is compressive load because all these forces are going to compress the block, correct? So this type of loading is called as compressive loading. Now just have a look on this. I am applying force like this, like this. Also I am applying forces like this. Which type of loading is this? This loading is called as tensile loading. If you have remembered, this loading is called as compressive and this loading is called as tensile, correct? Okay. There is one another kind of loading. See, here the block is there and it is fixed at the ground. At the ground it is fixed and I am going to apply the force on the top level. That level which is there on the top, I am going to apply the force on that. Now what is going to happen? This whole block, these two walls of the block are going to shift like this. If this is fixed at the ground, then what is going to happen is this will go under deformation like this, correct now? So I can say that this particular side will be coming here like this and this side will going to come here like this and this will be the new position of the block. Now you can see here this type of loading, if you have remember, we named it as a shear loading. हमने क्या नाम दिया था इसको? Shear loading. And these forces are called as compressive forces. These forces called as tensile forces. These forces are called as shear forces, correct? But now what I am going to explain you is just take an example of a liquid which is there inside a vessel. Here I am having a vessel and inside this there is some liquid, of course, which is a fluid. Now my question is, can you apply tensile force on this liquid? Can you just apply the force like this? क्या आप इस पर्टिकुलर लिक्विड को यहां से और यहां से ऐसा खींच सकते हो? No possibility at all, because liquid is not going to resist the tensile force. Let us come here. Can this liquid be applied with shear force? क्या हम लोग इस लिक्विड पे इस तरह का shear force जो कि इसका शेप चेंज करे अप्लाई कर सकते हैं? Not possible. So this liquid is not going to resist this shear force and this tensile force. Possible नहीं है. Yes, the compressive load can be applied. What you can do is you can apply the force from here, you can apply the force from here, you can apply the force from here, you can apply the force from the top. So you can apply the compressive loading on that particular thing, and that compressive loading is called as pressure in case of fluid mechanics. फ्लूइड मैकेनिक्स पे हम लोग इस कॉम्प्रेसिव लोडिंग को प्रेशर कहता है. दैट कॉम्प्रेसिव लोडिंग इज नथिंग बट द प्रेशर. एंड हाउ कैन वी मेजर दिस प्रेशर? व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस? वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन कमिंग लेक्चर्स. ओके, so for the sake of now, just remember that this liquid can be applied with compressive loading. The tensile loading and shear loading is not possible. Now take example of toothpaste. Suppose there is a toothpaste over here. You just apply the force over here.
जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये अपना शेप चेंज कर लेगा। क्या वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? नो, दिस टूथपेस्ट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू दिस shear फोर्स। अगर मैं इसका शेप चेंज करना चाहूं, किसी भी शेप में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब ये shear फोर्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब आइए उस डेफिनेशन पे जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा था, थर्ड नंबर पे, कि द फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस which cannot resist to shear stress। shear stress को रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, इजीली फोर्स अप्लाई करोगे तो ये डिफॉर्मेशन, ये शेप ऑफ चेंज में चले जाएंगे। And if you remember the second definition, that fluids are the substances which continuously deform when you apply the force on them। अगर ये टूथपेस्ट है तो इसके एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हो कि जब भी मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा और अगर कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करूंगा, इट विल बी कीप ऑन फ्लोइंग बिकॉज इट कैन नॉट रेजिस्ट टू द shear stress। I hope guys you remember the difference between load and stress। These are loads: compressive load, tensile load, shear load। What is stress? If we divide with the area, we call it as stress, or in general language, the stress associated with these loads are called as stresses: compressive stress, tensile stress, and shear stress। Okay, so coming to the fluid can withstand compressive load, which is called as pressure. Also, fluid cannot resist to the shear stress, and that is what the definition of fluid was। Pause your screen, copy this down, and we'll move further। Okay, so you have copied. Now let us understand some properties of fluids based on this discussion। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसके बेस पे हम लोग कुछ फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है। सो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इट कैन नॉट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। इट कैन नॉट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन यानी अगर उसका कोई शेप चेंज करना चाहेगा, अगर कोई इसको डिफॉर्म करना चाहेगा फ्लूइड का, तो फ्लूइड इसको रेजिस्ट नहीं करता, वो इजीली डिफॉर्म हो जाता है। द सेकेंड थिंग, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी वो? इट कैन फ्लो। फ्लूइड क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है, करेक्ट ना? द थर्ड डेफिनेशन, द थर्ड प्रॉपर्टी सॉरी ऑफ फ्लूइड, दैट इट टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर। शेप ऑफ द कंटेनर। अरे जिस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को डालोगे, फॉर एग्जांपल वाटर को आपने डाला तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। आप गैस को किसी कंटेनर में डालो तो उस पर्टिकुलर कंटेनर का शेप ले लेगी। तो फ्लूइड को आप जिस कंटेनर में डालोगे, इट कैन टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। क्लियर है? सो दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज विच ऑल फ्लूइड्स हैव। These are the general properties which all fluids have, but based on some properties, fluid can be classified into two types। Just pay concentration over here। इसको आप कॉपी कर लेना, स्क्रीन को पॉज करके। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इवन इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। हमने अभी तक जो फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कशन किया, करेक्ट, उसमें आपने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखा, उसमें आपने प्रॉपर्टीज भी देखा, लेकिन यहां पे एक आता है बच्चों एक क्लासिफिकेशन, और वो ये है कि दिस फ्लूइड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड्स। एक टाइप हमारे पास कौन सी है? आइडियल। और एक टाइप हमारे पास जो है बच्चों
वो है रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे मैं पहले बात करता हूं मैं रियल फ्लूइड की। रियल फ्लूइड वो सारे फ्लूइड है दुनिया के अंदर जो आपके सामने है, दैट ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड्स। आपने वाटर को देखा, रियल फ्लूइड है। आपने एयर को देखा, दैट इज ऑल्सो अ रियल फ्लूइड। टूथपेस्ट का हमने एग्जाम्पल लिया, दैट इज ऑल्सो अ रियल फ्लूइड। हमने मोल्टन लावा का एग्जाम्पल लिया, दैट इज ऑल्सो अ रियल फ्लूइड। ऑल फ्लूइड्स विच यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड आर रियल फ्लूइड्स। अब यहां क्वेश्चन आएगा कि सर जब सारे के सारे फ्लूइड रियल है तो इसकी क्या जरूरत है आइडियल फ्लूइड की? जरूरत तो दूर की बात है, क्लासिफिकेशन में आया कैसे जब एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? यस। देखिए बच्चों, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या फिर इंजीनियरिंग में जब हम लोग किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस सिचुएशन में कुछ चीजें अज्यूम करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड करना है कि आईसी इंजन कितना पावर प्रोड्यूस करता है, तो हम वहां पर ये चीजें अज्यूम करते हैं कि वहां पे लॉसेस नहीं है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे फ्लूइड के अंदर आई मीन पेट्रोल और डीजल के अंदर जो ऑक्टेन और सीटेन नंबर होता है उसमें डिफेक्ट नहीं है। हम ये सारी चीजें लेके चलते हैं और फाइनली एनालाइज करते हैं। आइडियली जब आइडियल एनालाइज करके हमारे पास रिजल्ट आ गया, अब उसके बाद हम लोग एक एक चीज जो लॉसेस है उसमें से कम करते जाते हैं और फाइनली हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जब हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक फ्लूइड के पास आइडियली कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। आइडियली कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए ये हम मान के चलेंगे कि आइडियली उसके पास क्या होना चाहिए। वो अलग बात है कि जब रियल सिचुएशन में एनालाइज करोगे तो रियल में कुछ ना कुछ लॉसेस उसके अंदर आएंगे। आप मेरी बात समझे? इसीलिए हम लोगों को यह पढ़ना जरूरी है कि एक आइडियल फ्लूइड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो चलो बात करते हैं कि एक आइडियल फ्लूइड के पास क्या क्या होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग, द आइडियल फ्लूइड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। इट शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल वर्ड को आपने कई मर्तबा सुन चुके होंगे। इनकॉम्प्रेसिबल किसे कहते हैं? सी द मटेरियल, वो मटेरियल जिसकी डेंसिटी आप प्रेशर अप्लाई करके चेंज नहीं कर सकते उसे इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बोतल है और इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है। अगर उस पर्टिकुलर वाटर को मैं ऊपर से प्रेस करूं, वाटर सरफेस को, और प्रेस करके मैं उसका वॉल्यूम कम करना चाहूं, और अगर इसका वॉल्यूम कम न हो आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर, देन वी से दैट दिस वाटर इज इनकॉम्प्रेसिबल। सो आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे? अनआइडियल फ्लूइड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है? द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड should not change with pressure variation। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते जाएंगे मेरे साथ। डेंसिटी remains same with pressure variation। density remains same with pressure variation, correct? This is the first property. Now come to the second property. An ideal fluid should be irrotational. It should be irrotational। अब ये सर irrotational क्या होता है? See here. Suppose for example here there is I am having a pipeline, okay, and the fluid, it can be any fluid, it can be air, it can be water, it can be anything. It is flowing inside this. Suppose you can see that this is a streamline flow। streamline flow के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Suppose I have divided this all fluid in different layer, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Now in the path of flowing, suppose the area of this particular thing reduces,
एरिया रिड्यूस हो गया। अच्छा, रिड्यूस होने के बाद फिर से एरिया आगे जाके इंक्रीज हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो पाइपलाइन है ये यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पे क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, यहां पे जाके एरिया कम, यहां पे जाके एरिया बढ़ गया, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, ये फ्लूइड इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। अब अगर इस पर्टिकुलर एरिया से निकलने के बाद ये फ्लूइड अपनी स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इररोटेशनल फ्लो। वरना रियलिटी में क्या होगा मैं आपको बताऊं, जब ये लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा, इट विल बी रोटेट लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, इट विल टेक अ शेप समथिंग लाइक दिस. Some part of the fluid will take the shape like this and some part of the fluid will go straight. So if a fluid is not behaving like this, it is moving straight streamline, then we say that a fluid is irrotational. तो आपको मेरी बात समझ में आई? किसको बोलेंगे irrotational? अच्छा, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग टर्बुलेंस कहते हैं. टर्बुलेंस का मतलब डिस्टर्बेंस. आप एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे होंगे तो वहां पे अनाउंस करता है पायलट, भाई देयर इज सम टर्बुलेंस. टर्बुलेंस मींस एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन योर एयरप्लेन वाइब्रेट्स, करेक्ट ना? इट वाइब्रेट्स, it goes up to some height, then goes down, then goes some height, then goes down. Some kind of disturbance is there and that is we called it as turbulence. Okay, तो irrotational किसे कहेंगे हम? Irrotational वो फ्लूइड है जिसमें there is no turbulence in flow. Correct? Okay. So ideal fluid should be incompressible. It should be irrotational. Now there is one another property, and that is the flow is steady. The flow is steady flow. अब ये steady flow क्या होता है? बहुत सिंपल. सपोज एक पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आपने उस पर्टिकुलर पाइप के अंदर, सपोज देयर इज अ पाइप लाइक दिस एंड हियर द फ्लूइड इज फ्लोइंग इनसाइड. यू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो हियर और आपको वेलोसिटी मिली v. ऑल्सो यू मेजर्ड द वेलोसिटी v हियर और आपको यहां पे वेलोसिटी सेम मिली. तो अगर वेलोसिटी ऑफ द फ्लो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड is uniform, is same at each and every point, then we say that flow is steady flow, and this is the property of an ideal fluid. तो आपको समझ में आ रही है बात? आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे हम? It should be incompressible, it should be irrotational, and the flow of that particular fluid through a continuum should be uniform, means the velocity should be same at each and every point. Guys, you always, the diagrams which are drawing over there, the diagrams which are making over here for explanation, you should make this diagram for your explanation in your notebook. Okay, just copy down this diagram. We continue. You have drawn this diagram. Now I am rubbing this because I have to make another diagram over here to explain you the next property. So in case of steady flow, you can write velocity is uniform at each and every point. Okay, now coming to the next very important property of an ideal fluid. The ideal fluid should be non-viscous. It should be non-viscous. Students, ये विस्कस क्या है? विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी एक्चुअली एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जो हम आगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आगे के वीडियोस में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे. अभी खाली इतना समझ लो कि एक फ्लूइड को नॉन विस्कस कब कहा जाता है. सपोज फॉर एग्जांपल एक पाइपलाइन है और उस पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर सपोज एक फ्लो हो रहा है, एंड सपोज दिस ऑल पेन्स
are showing some layers of the fluid. The fluid is completely flowing like this through this pipeline. अच्छा, अब क्या होता है, this layer of the fluid, if this layer does not apply the shear stress on this, if the friction between this layer and this layer is zero, if there is no frictional force between this layer of fluid and this layer, then we say that this is non-viscous, and this is the property of an ideal fluid. It should be non-viscous. Non-viscous means the viscosity should be zero. It should not have frictional resistance between two layers of the fluid. One part of the fluid does not apply the frictional force on the another part, and such kind of fluids are called as ideal fluids. So non-viscous के आगे क्या लिखेंगे? There is no friction between any two layers of the fluid. Now we have completed these four properties. Now just look over here. ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है, दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल फ्लूइड. लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आइडियल फ्लूइड कंप्लीटली जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी हो, ऐसा यूनिवर्स में कोई भी फ्लूइड पॉसिबल नहीं है. ये हमने हमारा स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि एक आइडियल फ्लूइड के पास इतनी सारी आइडियल प्रॉपर्टीज होना चाहिए. अब होगा क्या, किसी फ्लूइड के पास ये प्रॉपर्टी होगी बाकी तीन नहीं होगी, किसी के पास एक प्रॉपर्टी होगी बाकी दूसरी तीन नहीं होगी. तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे हम लोग फ्लूइड की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसीलिए हमें आइडियल फ्लूइड पढ़ने की जरूरत है. आर यू गेटिंग मी? सो दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट पॉज योर स्क्रीन एंड नोट इट डाउन. वी मूव फर्दर. ओके गाइस, नाउ क्या क्या देखा हम लोगों ने, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. क्या क्या देखा हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने फ्लूइड की डेफिनेशन देखा, और फ्लूइड की डेफिनेशन के बेस पे हम लोगों ने एग्जांपल देखा, और उस एग्जांपल के बेसिस पे हम लोगों ने समझा कि फ्लूइड क्या होता है. उसके बाद हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया कि फ्लूइड जो होता है दैट इज लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा ओनली. करेक्ट ना? एंड उसके बाद हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन देखा कि दिस फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड रियल फ्लूइड. गाइस, आई वांट टू मेंशन वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमने अभी देखा था कि दिस फ्लूइड इज, it can be liquid, correct, it can be gas, correct, it can be plasma. And in this particular chapter we are going to study mechanical properties of fluids. That means we are going to study mechanical properties of liquid, gas and plasma. Correct na? According to this. But in this particular chapter we are not going to talk about plasma. Of course plasma comes under fluid. It comes under fluids, but in our chapter we will be only considering liquids and gas. So we will be only talking about mechanical properties of liquid and gas. Plasma we are not going to talk about. Okay, now there is some another doubt in the student's mind. Some people understand that this particular term fluid and liquid, they are same. Some people understand that fluid and liquid they are same. No guys, fluid and liquid they are not same. Liquid comes under fluid, gases come under fluids, plasma come under fluids, but every fluid is not liquid. You have to understand that. That is another thing, that in real world, in actual practice, in some of the cases we use the word liquid, we use the word fluid in place of liquid. For example, गाड़ी का ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक के अंदर जो मटेरियल होता है एक्चुअली दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज एन ऑयल, इट इज अ सिंथेटिक ऑयल, बट व्हाट वी यूज ओवर देयर, वी से इट एज ब्रेक फ्लूइड. उसी तरह क्लच के अंदर जो फ्लूइड होता है हम उसको बोलते हैं क्लच फ्लूइड. ओके, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस and liquid both. We are using the word fluid, but actually it is a liquid over there.
ओके तो फ्लूइड और लिक्विड दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिला मत देना। फ्लूइड किसको कहेंगे? एनीथिंग विच कैन फ्लो। अब वो जो फ्लो हो सकती है वो गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, वो प्लाज्मा भी हो सकता है। लेकिन लिक्विड किसे कहेंगे? लिक्विड का अपना खुद का डेफिनेशन है, उसका अपना पर्टिकुलर एग्जांपल्स है और वो अलग चीज है। ठीक है, इन जनरल यू कैन से लिक्विड इज अ पार्ट ऑफ फ्लूइड, it comes under fluid. Every liquid is fluid, but every fluid is not liquid. This is the general distinguish. Now let us move further and we talk about mechanical properties. हमने fluid के बारे में अभी जितनी चीजें पढ़ी, I hope it is very crystal clear to you. And by this time you are able to tell anyone about the fluid, you can explain anyone about the fluid and you are very much familiar with the fluids. Okay, देखो ये चीजें बहुत बेसिक है, लेकिन जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे ना उतना आगे पढ़ने में मजा आएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहां पे हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर के नाम से, चैप्टर के नाम में क्या आ रहा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? आपको याद होगा लास्ट ईयर चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, लेकिन चलो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? सी, व्हेनेवर you are applying the force on some particular object, whenever you apply the force on some material, I'm not saying solid, liquid or anything, you are applying the force on any object, then in reaction to it shows some properties and that properties are called as mechanical properties. So whenever load is applied to a material, then it shows some properties which are called as mechanical properties, or you can say in reaction to load, in reaction, बेटर रहेगा आप ऐसा लिखे, in reaction to the applied load, in reaction to the applied load, it shows some behavior and that is called as mechanical properties of that material. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लास्ट ईयर का रिवाइज करते हैं, हमने सॉलिड लिया था और सॉलिड में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जिससे हमें एक प्रॉपर्टी मिली जिसका नाम था इलास्टिसिटी। उसके बाद हम लोगों ने उस पर शेयर फोर्स अप्लाई किया जिससे हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मिली जिसका नाम हमने कहा रिजिडिटी। करेक्ट। उसके बाद हमने इस मटेरियल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे हमें कुछ प्रॉपर्टी मिली जिसका नाम है मेलेबिलिटी। तो ये जो मेटल की प्रॉपर्टीज इतनी सारी है ये हमें कैसे मिली? बाय अप्लाइंग द लोड एंड फोर्स ऑन दैट मटेरियल। फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है टफनेस किसी भी मटेरियल का, हार्डनेस फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? यू विल बी अप्लाइंग एन इंडेंट पॉइंट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आप उस पर लोड अप्लाई करेंगे और फिर आप उस पर्टिकुलर लोड का रिएक्शन उस पर्टिकुलर मटेरियल पे देखेंगे तो आपको मिलेगा हार्डनेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिनल हार्डनेस नंबर। उसकी एक अलग स्टडी है जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सॉलिड्स के अंदर। ओके, लेकिन हमारे पास जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज आई थी लोड अप्लाई करने के बाद, दैट वाज क्या क्या थी वो आपको याद होगा। दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वर इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड
malleability, rigidity, toughness, hardness, etc. These are the mechanical properties of solids. ये सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो जिस तरह सॉलिड पे कुछ एफर्ट अप्लाई करने पे सॉलिड कुछ बिहेवियर देता है, उससे हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता चलती है, उसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग, यू आर डीलिंग विद द वाटर, you are applying different kind of loading and you are studying the fluid at particular position, either in rest or either in motion, then you come to know about some behavior of that particular fluid in that situation, and these are called as mechanical properties of fluids. अब बात समझ रहे हो? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में क्या क्या आ सकता है? आप पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। आप पढ़ेंगे इसके अंदर उसका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये किसी भी फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। आप इसके अंदर पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी फ्लूइड की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, एटसेट्रा। These all properties are called as mechanical properties of fluid. तो आई होप आपको ये चैप्टर का नाम अच्छे से समझ में आ गया। देखो अभी तक हम लोग चैप्टर का नाम ही डिस्कस कर रहे थे। हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ा, फ्लूइड के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझा, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है उसके कुछ 3 एग्जाम्पल हमने देखे। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर है, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो भी है रहने दो। व्हाट इज द नीड टू स्टडी? सी, और आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल के अंदर एक क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइड्स इन आवर लाइफ। तो बिफोर गोइंग टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, पहले मैं ये बात बताता हूं कि सॉलिड की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसका हमारी लाइफ में क्या यूज है। हमने इलास्टिसिटी फाइंड किया, हमने प्लास्टिसिटी फाइंड किया, हमने उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड किया, हमने उसका मेलेबिलिटी फाइंड किया, टफनेस, हार्डनेस फाइंड किया। इसका क्या हमें फायदा मिला? सी, बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यू कैन इजीली कम टू नो अबाउट मटीरियल्स यूजफुलनेस। आप क्या जान सकते हो मटीरियल का यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मतलब ड्यूरेशन ऑफ यूज। इस पर्टिकुलर मटेरियल को आप कब तक यूज कर सकते हो और किन कंडीशंस के अंदर आप इन मटेरियल को यूज कर सकते हो, या फिर इस मटेरियल को अगर यूज करना है तो क्या एक्सट्रीम लिमिट्स है। ये सारी चीजें हमें पता चलती है। फॉर एग्जांपल एक कोई सिविल इंजीनियर है जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है, अगर वो मटेरियल यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल आयरन या स्टील, और अगर उसको स्टील की प्रॉपर्टीज पता नहीं है, उसको ये नहीं मालूम है कि ये स्टील कितना लोड लेगा, ये स्टील कितना डिफॉर्म होगा, अगर ये चीजें उसको नहीं पता है, देन हीज डिजाइन प्रोबेबली कैन फेल एंड द स्ट्रक्चर कैन गेट डिस्ट्रॉय। सो to know mechanical properties of solid is very important because we are using in our day-to-day life. Right from the nib of the pen to the structure of building, you are using solids everywhere, and that is why there is important of study of mechanical properties of solids. In similar fashion, when you study the mechanical properties of fluids, then you come to know about the viscosity of the fluid, the specific gravity of the fluid, the surface tension of the fluid, which can tell you that up to how much extent you can use this particular fluid. आप इस फ्लूइड को कब तक यूज कर सकते हो, किस सिचुएशन में यूज कर सकते हो, कहां यूज नहीं कर सकते, किस टेम्परेचर डिफरेंस तक आप इसको यूज कर सकते हो, कौन से प्रेशर डिफरेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर ये सारी चीजों का आंसर हमें जानना है तो हमें इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगी। और हमारे डे टू डे लाइफ में हम फ्लूइड कहां यूज करते हैं? इंक ऑफ दिस पेन।
आपके हाथ में जो पेन है उसकी इंक, यहां इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर, इस मार्कर के अंदर जो इंक है वो दैट इज फ्लूइड। आप देखते हो जब यहां पे आप कोई भी चीज लिखते हो ये फौरन सूख जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस पेन से लेकर के आपके ऑटोमोबाइल के ब्रेक्स तक, आप जो अपनी गाड़ी के अंदर ब्रेक अप्लाई करते हो तो पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड जाके ब्रेक अप्लाई करता है। आपने अगर देखा होगा गैरेज के अंदर जब हम लोग काम करते हैं और बहुत हाई लोड को इंडस्ट्री के अंदर उठाना होता है तो ओवर देयर वी यूज हाइड्रोलिक जैक। वो हाइड्रोलिक जैक में क्या होता है, देयर इज अ फ्लूइड इनसाइड एंड यूजिंग पास्कल्स लॉ वी आर अप्लाइंग द प्रेशर ऑन वन साइड एंड अनदर साइड द होल हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट्स। तो ये हमें कैसे पता चला, बाय स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स के अंदर जहां पे हम लोग फ्लूइड को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, वहां भी हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इस फ्लूइड्स में कितना हाइड्रोलिक प्रेशर होगा सो दैट इट कैन रन द इंपेलर। ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय स्टडीइंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स। And similarly in heat engines we are using coolant, we are using engine oil, we are using brake oil, we are using gear oil, we are using clutch oil. All these things are fluids only. In case of truck we are using air in place of fluid. We are using air as a fluid for the brake. Air is what? It is also a fluid. So the summary is, if you are well enough to know about the mechanical properties of fluid, then only you can apply this fluid in your day to day life. और अभी मैंने जो एग्जांपल्स दिया उससे आपको इजीली पता चल गया होगा कि फ्लूइड का इंपॉर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है। बच्चों इसीलिए हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो कमिंग चैप्टर में हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और जिस तरह आज हम लोगों ने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया और फ्लूइड को समझा, बेसिक से स्टार्ट किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को समझा, कमिंग वीडियोस में, कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे डील करना है। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। आई विल बी ट्राइंग टू टेक योर डाउट्स एंड सॉल्व इट। तो लेक्चर को ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बुक में जाइए, जहां तक आज मैंने पढ़ाया है वहां तक पूरा पढ़िए। डाउट्स आ रहा है तो क्वेश्चन पूछिए। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले किसी मज़ेदार इसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम लोग एंजॉय करेंगे कमिंग वीडियोस में। तब तक के क्या करेंगे, आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़े, अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट डाउन करते रहे, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बाय।